So basically, listen here. Fourier series. What is the use of the Fourier series? So basically, why we use the Fourier series? If we want the expansion of any function in terms of sin x and cos x, then we are using Fourier series. So basically, what we are doing with the help of Fourier series, we are expanding the function in the terms of sin and cos. Okay, ये समझ में आया कि सबको क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली Fourier series में हम कोई भी फंक्शन को sin x या cos x के टर्म्स में एक्सपांड कर रहे हैं. आप बोलोगे इसे why we are doing this thing. तो why we are converting that function to sin x and cos x. Basically, if you know the sin x graph and cos x graph, so we are going to get some waves like that. Okay, so here and that both are the continuous function. So basically this Fourier series is used in Fourier transform. सिग्नल प्रोसेसिंग की जो स्टडी होती है, सिग्नल प्रोसेसिंग लाइक जब हम बात करते हैं, अगर आपने कोई म्यूजिकल ऐप होगा तो उस पर देखा होगा, देखो ऐसे जब व्हेन यू टॉक वैसे अप एंड डाउन होता रहता है बार्स. ओके, हैव यू सीन दैट? Yes, sir. तो दैट इज अ Yes, sir. फ्रीक्वेंसी. Yes, sir. Yes. सो अगर Yes, उसका sir. अपने जो एंड पॉइंट्स है लाइक ऊपर जाता है, सडनली अगर गाना स्टॉप हो गया तो वो नीचे चला जाता है ना. ओके, जितना जोर से गाओगे तो और थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा. ओके, लाइक दैट. अगर स्लो सॉन्ग होगा तो वो नीचे आ जाएगा. एंड अगर आपने उसका अगर कर्व ड्रॉ किया तो इट विल बी अ कंटिन्यूअस कर्व. ओके, एंड इट विल समवॉट लुक लाइक साइन एंड कॉस. ओके, तो बेसिकली इन दिस Fourier series is used in a Fourier transform. Fourier transform is used in a signal processing. Okay, like signal कैसे आ रहे हैं, to study that we require this Fourier transform. Are you getting the application of this? The Fourier series not directly it is used in Fourier transform, and then Fourier transform is used in signal processing. Okay, fine. Now before we start with the Fourier series, we need the concept of periodic function. I think you have studied periodic function before. पढ़ा होगा आपने. Hello. Yes, sir. Oh, sir. Yes. So listen here, a periodic function is what? A function fx is said to be a periodic function if of the period t. Means t is called as a period of the function t if f of x plus t is equal to f of x for all x. Means ऐसे अगर कोई आपको t मिला such that वो t ऐड करने के बाद भी वापस आपको f of x ही मिल रहा है, then that t is called as a period of that function. Okay, for example ध्यान दो यहाँ पे. All of you know what is for example, what is sine of 30? 1/2. Half. Is it 1/2. half? But do you know that this is nothing but your pi by 6. Okay, so do you know that sine of pi by 6 में अगर मैंने 2 pi add कर दिया, if I add 2 pi to this, the answer will be again 1.5. Okay. That means here ध्यान दो, मैंने अगर यहाँ पे साइन पाई बाय 6 प्लस 2 पाई की वैल्यू निकाली, दैट विल बी अगेन 2 पाई, that will be again half. Okay, even if I find out sine of pi by 4, that is 45, it is 1 by root 2, and if I add 2 pi to it, it will again give you 1 by root 2 only. Okay, getting the thing. That means साइन के फंक्शन में अगर x में किसी में भी आपने 2 पाई ऐड कर दिया तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी. What can you say? What will be the conclusion from this? What about the period of sine function? 2 2 pi. pi. Is a periodic function. Yeah. So up to 2 pi, period means what? It is like a cycle. So it is repeating after some time. Okay, that is called as a period, right? So same way here, after 2 pi, the same cycle is goes on repeating. अगर आपने ग्राफ देखा sin x का, तो sin x का ग्राफ कैसे दिखता है? In short, I'll tell you. तो देखो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है. देखो साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है. देन इट विल कम डाउन साइन पाई. ओके, देन अगेन ये नीचे चला जाता है 3 पाई बाय 2 के लिए -1 एंड 2 पाई. ये साइकिल होती है. तो ये 0 to 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ ऐसे दिखता है. ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ये ऐसे दिखता है ना? Yes, sir. बट डू यू नो दैट आफ्टर 2 पाई के बाद में ये साइकिल वापस सेम रोटेट होती है. दैट मीन्स 2 पाई टू 4 पाई में यही दिखता है. देखो जो यहाँ पे दिखा था हमें, यहाँ से यहाँ तक वही यहाँ पे दिखे. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. Okay, that means
हियर 2 पाई पीरियड के बाद वही साइकिल रिपीट होती रहती है साइन एक्स के ग्राफ में. सिमिलर इन कॉस एक्स के ग्राफ में भी वही साइकिल रिपीट होती रहती है. ओके, सो कैन आई से दिस 2 पाई, बिकॉज सी यहाँ पे कब कब रिपीट होती है 2 पाई इंटरवल के बाद ना. सो दिस 2 पाई इज कॉल्ड एज अ पीरियड. तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका पीरियड है. देन सिंस वापस 2 पाई टू 4 पाई वही होगा, 2 4 पाई टू 6 पाई यही होने वाला है, 6 पाई टू 8 पाई वही होने वाला है. ओके, so can I say that 2 pi is a period for sin x? Similarly, 2 pi is a period for cos x also. Okay, are you getting the concept of period, everyone? Yes. Okay, that is the definition of period. Okay, now the next thing is smallest period. The smallest period of f of x is called as a fundamental period or a simply a period. Okay, that means listen here. अगर मैंने बोला, ध्यान दो यहाँ पे, आपने अगर चेक किया ना तो एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, साइन पाई बाय 6 में अगर मैंने 2 पाई ऐड कर दिया तो आपको पाई वापस हाफ ही मिलने वाला है. बट इंस्टेड ऑफ 2 पाई मैंने अगर 4 पाई ऐड किया तो भी हाफ ही मिलेगा, मैंने अगर 6 पाई ऐड किया तो भी हाफ ही मिलेगा, बिकॉज 2 पाई इंटरवल के बाद वही रिपीट होता रहता है ना. इसमें 100 पाई किया तो क्या होगा बताओ, हाफ मिलेगा, 1/2. हाफ ही मिलेगा. 1000 किया तो क्या मिलेगा, हाफ ही मिलेगा. Same 1/2. यस राइट, दैट मीन्स 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड किया ना यहाँ पे, कोई भी मल्टीपल, ओके, देन यू आर गोइंग टू गेट हाफ ओनली. बट इसमें सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 2 पाई स्मॉलेस्ट है ना सबसे. आर यू गेटिंग, 2 पाई इज व्हाट, इट इज द स्मॉलेस्ट वन. ओके, तो इस 2 पाई को क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल पीरियड. तो लिसन, आई कैन से साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, 100 पाई है, 1000 पाई है. बट इस सब में से छोटा कौन सा है, 2 पाई. तो 2 पाई इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल पीरियड. Are you getting the difference between a general period and a fundamental period? तो see, as I told you, अगर 2 पाई पीरियड है ना तो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल पीरियड होता है. रिमेंबर, अगर 2 पाई पीरियड है तो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल पीरियड ही होता है. ओके, बट उसमें से सबसे जो छोटा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल पीरियड, और सिंपली इट इज कॉल्ड एज अ पीरियड. ओके, गेटिंग. तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स का सबका 2 पाई है. ओके, तो साइन एक्स कॉस एक्स सबका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई. बट अगर मैंने जनरल पीरियड पूछा इसका तो 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है, 10 पाई भी है. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. इफ टी इज अ पीरियड ऑफ एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स का पीरियड क्या है, टी है, टी इज अ पीरियड ऑफ एफ एक्स, देन एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड पूछेंगे आप. तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कैसे निकालना है, सिंपली टी अपॉन ए. तो ध्यान दो, अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो पीरियड उसका छोटा हो जाता है, कम हो जाता है. तो इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 2a. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने अगर साइन 2x का ग्राफ निकाला ना तो वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा, तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, ऐसे दिखेगा. मीन्स कम वेव जो उसकी लेंथ होगी वेव्स की वो कम हो जाएगी. ओके, यू कैन चेक आउट ऑन गूगल कि साइन एक्स एंड साइन 2x का ग्राफ वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा. दैट मीन्स उसका पीरियड क्या होगा, कम होने वाला है, टी अपॉन ए होगा. तो रिमेंबर, इफ टी इज अ पीरियड ऑफ एफ एक्स देन एफ ऑफ ए एक्स का, एफ ऑफ ए एक्स भी ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट उसका पीरियड होता है टी अपॉन ए. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर साइन एक्स का पीरियड आपने देखा कि 2 पाई होता है, तो कैन यू टेल मी साइन 2x का पीरियड क्या होगा. तो सिंपली क्या करना है, जो पीरियड है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ये नंबर से डिवाइड कर दो. ओके, मैंने साइन 5x का पीरियड पूछा तो क्या होगा वो 2 पाई बाय 5. आर यू गेटिंग? समझते का सगळ्यांना? हाँ सर, समझते. Yes. वो एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखे हैं. ओके, लाइक आपके है साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इन सब का फंडामेंटल, यहाँ पे मैंने फंडामेंटल पीरियड लिखा है. इन सब का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई सबका. साइन एक्स कॉस एक्स, ये एमसीक्यू में अगेन कैन बी आस्क्ड, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको. ओके, तो दिस ऑल कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू. तो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स सबका पीरियड 2 पाई होता है, याद रखो. tan x cot x का डेरिवेटिव और पीरियड होता है पाई.
As I told you now, sin 4x का क्या होगा? Can anyone tell me? Pi by 2 pi. 2. 1 by 2. Pi by 2. Pi 1 by by 2. That is 5 by 2. 5 by 2. 1 by pi 2. by 2. Yeah. 5 by 2. Pi by 2 या 2 pi by 4 लिखो. तो sin 4x या cos 4x का पीरियड होगा आपका 2 pi by 4. tan 3x का क्या होगा? pi by 3. ओके, आर यू गेटिंग? ये एमसीक्यू में पूछेंगे आपको कि tan 9x का क्या होगा, 3x का क्या होगा वगैरह वगैरह. ओके, गेटिंग दिस? Yes, sir. चलो राइट डाउन. Yes. लिख लो. Done everyone? No, sir. Yes, sir. सभी हो गया? Take it up. तो ऊपर लेवल देखा ना. Done everyone? हो गया? Yes, sir. Finish everyone? Should I? Yes, sir. Yes, sir. Yes. I hope periodic function is clear. What is fundamental period, that is also clear. And how to find out the period of f of ax, that is also clear. It is t by a. अगर आपको tan of 5x का पूछा तो आपको tan का मालूम होना चाहिए. अगर tan का पीरियड pi है तो tan 5x का pi by 5 होगा. So that you should know. I hope it is clear up to this, everyone, no doubt. Yes, sir. Yeah. Now the next Yes, thing sir. that we are going to see is even function, even and odd function. So
पहले हम इवन फंक्शन देखते हैं. So anyone know what is the meaning of even function? What do you mean by even function? किसी फंक्शन को even function कब कहते हैं? f of minus x equals to f of x. Right, correct. So the definition of even function is function fx. Fx is said to be even function if f of minus x is equal to f of x. Okay, I think already you know this. Yes. Okay, that means what? Listen here. आपके पास अगर कोई function, if you have a function like f of x, and आपने x की जगह minus x replace कर दिया, if you replace x by minus x, and if you are getting f of x only, then that function is called as a even function. For example, अगर मैंने function ले लिया sin x, and if I want to check out whether this function is even or odd, अगर मुझे check करना है कि ये function even है या odd है, I will check out x की जगह minus x डाल दो. So if I replace x by minus x, am I going to get sine of minus x? But what is sine of minus x? ये अभी odd हो गया, sorry मैंने odd ले लिया. Minus sin x. Cos x, sorry, cos x ले लो, cos. So if I take cos x here, cos x even. so it is cos of minus x हो जाएगा. But what is cos of minus x? Is it cos of x only? Cos x. So are you getting Yes, f sir. of x? So I have started with f of minus x. Okay, but ultimately at the end I am getting f of x only. So can I say because of this that cos x is the even function? Yes, sir. समझ में आ Yes, रहा है? sir. Sir. Okay. Then if I give you suppose x square function, so x square is also x square भी even function है, right? Are you getting? Because x के जगह minus x डालोगे आप तो क्या हो जाएगा? f of minus x is equal to minus x का square. Will it be x square only? And is it fx? fx ही मिलेगा ना वापस. तो ये भी even function है. Okay. If I take suppose f of x is equal to x into sin x, क्या होगा? अगर मैंने x की जगह minus x डाल दिया तो ये हो जाएगा minus x into sin of minus x. बट ये sin of minus x माइनस हो जाएगा ना, minus sin x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो is it x into sin x? Is it f of x only? Yes. Are you getting? तो ये cos x is even, x square is even, x into sin x is also even. x की कोई भी पावर ले ली, even पावर, कोई भी even पावर लेते हो आप, तो that function is always even. याद रखो. x raised to 2, x raised to 4, x raised to 10, x raised to 100, that all functions are even. Okay? Clear with even function, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then what do you mean by odd then? Odd function क्या होता है? f of minus x is equal to minus f of x. F of minus x equals to minus f of x. Yeah, F of minus x equals to minus. या तो मैं अगर x की जगह माइनस x डाल देता हूँ एंड अगर आपको माइनस साइन बाहर आ जाता है, एक्चुअली इवन के केस में क्या होता है, माइनस साइन गायब होता है, ऑड के केस में वो गायब नहीं होता है. दैट्स इट, दैट इज द ओनली चेंज. अगर वो माइनस साइन बाहर आ गया देन इट इज ऑड, अगर नहीं आया देन इट इज इवन. ओके, तो f(x) इज f of x is odd. Can anyone tell me the examples of odd functions? sin x. Sin x is the odd function Sin because x. Sin x Sin x. माइनस डालोगे तो माइनस sin x मिलेगा. Then x cube odd पावर ले ली तो odd मिलेगा, right? If I take suppose x cube into sin x, this is also odd. Okay, ये भी odd function है because minus x cube होगा और ये minus सर वो even होगा. even हो जाएगा, इसकी पावर
Sir, x cos x. x cube या cos x क्यूब x स्क्वायर sin x लिया तो ऑड हो जाएगा. इफ आई टेक x cos x ये भी ऑड हो जाएगा. ओके चलो राइट. म्यूट करो एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ. ले फिनिश. हो गया. No, नो sir. सर. Hello, sir. Done everyone. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. Okay. Now listen. Can be asked in MCQ. ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन की मे भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको. बट एक चीज याद रखो, अगर इवन फंक्शन ई मींस इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन आया तो क्या, व्हाट यू थिंक रिजल्ट क्या आएगा इसका? इवन होगा या ऑड? Odd. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इनटू cos x ले लो ना. एक्स स्क्वायर इवन है तो ये माइनस को लोग एक्स स्क्वायर ही बना देगा, और ये भी माइनस को एक्स स्क्वायर एक cos x ही बना देगा, तो इवन ही आएगा. नहीं आएगा. याद रखो, इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन का रिजल्ट जो होता है वो इवन ही होता है. ओके. अगर इवन इनटू ऑड आया, ओके, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड. ई मींस इवन है एंड ओ मींस ऑड है. तो व्हाट यू थिंक इवन इनटू ऑड क्या होगा? Odd. इट विल बी Odd. Odd होगा. लाइक फॉर एग्जांपल x ले लो, x स्क्वायर ले लो एंड sin x. Sin x. तो ये ऑड है और ये इवन है. ये प्लस बना देगा बट ये माइनस बनाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. -x. तो इट विल बी लाइक आपके प्लस माइनस साइन जैसा लॉजिक याद रखना है आपके. इवन मींस प्लस, ऑड मींस माइनस. ऑड इनटू ऑड क्या होगा? Even. Even. यहाँ पे ये उल्टा भी किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ऑड इनटू इवन इनटू ऑड, इट विल गिव यू ऑड ओनली. ओके. बट ऑड इनटू ऑड आया तो इट विल गिव यू इवन. ओके. सिंपली रिमेंबर दैट ये आपके प्लस साइन जैसा काम करता है अगर आपको याद रखना है तो, और ये आपके माइनस साइन जैसे. तो देखो, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. ओके.
Plus into minus will give you always minus. So it is like behave like a plus minus sign. याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. चलो. Now we are in the place to define what is Fourier. वो लिख के ले लो नोट ऊपर की. बट याद रखो फोरियर सीरीज लिखने के लिए ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फोरियर सीरीज लिखने के लिए वो फंक्शन कंपलसरी पीरियोडिक होना जरूरी है. तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही फोरियर सीरीज लिखी जाती है. तो लेट एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक उसका पीरियड कुछ भी होने दो, बी अ पीरियोडिक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, पाई, 2 पाई, एल, 2, 5, एनीथिंग. पीरियोडिक फंक्शन सपोज ऑफ पीरियड 2l, हमने उसका पीरियड ले लिया 2 टाइम्स l. ओके, डिफाइंड in the interval c comma c plus 2l. And satisfies Dirichlet's condition. Then x can be expressed. X is equal to summation inverse infinity n cos of n pi x. Sin n pi x. Where a naught is equal to 1 upon l c to c plus 2l. N is equal to n c comma c plus 2l. Okay. Down, then I explain it. Okay, all of you write down. तो ध्यान दो, बेसिकली फूरियर सीरीज क्या होता है. तो अगर आपका एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, ओके, पीरियोडिक फंक्शन मीन्स कुछ तो पीरियड होगा, उसके बाद वो रिपीट होता है, लाइक साइन एक्स कॉस एक्स.
अभी हमने क्या लिया है, उसका पीरियड लिया है 2L. Okay, L can be anything. L can be 1, L can be 2, L can be pi, L can be pi by 2. L की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. और एक इंटरवल दिया. जनरली फोरियर सीरीज लिखते वक्त हमें एक इंटरवल दी जाएगी हमेशा. ओके, ऑल द टाइम्स दिस इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो एक इंटरवल दिए C से C+2L तक. तो उसकी लेंथ क्या है? कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल? X to C plus 12. 2L है उसकी इंटरवल लेंथ जो है ना, उस इंटरवल की लेंथ जो है C से स्टार्ट हुआ है और C के आगे कितना गया? 2L ना. C+2L है देखो. तो इसकी लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट इज 2L. कैन आई से? Yes, sir. Yes, sir. तो इस इंटरवल की पीरियड लेंथ जो है वो 2L. एंड सैटिस्फाई द डिरिचलेट कंडीशन. एक्चुअली डिरिचलेट कंडीशन में 3 कंडीशंस होते हैं. जनरली वो फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है वो कंडीशन, देन ओनली फोरियर सीरीज उसकी लिखी जाती है. अदरवाइज वी कांट राइट डाउन द फोरियर सीरीज. ओके, बट आपको कोई डिरिचलेट कंडीशन पूछने नहीं वाला, इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे. बट डिरिचलेट कंडीशंस क्या होते हैं, आई विल जस्ट टेल यू कि डिरिचलेट कंडीशन 3 कंडीशंस होते हैं. पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो फंक्शन है आपका वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. सिंगल वैल्यूड फंक्शन मीन्स उसके एक ही फंक्शन की 2 वैल्यूज एट अ टाइम नहीं मिलनी चाहिए. ओके, तो इट शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन. उसमें डिसकंटिन्यूटीज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा. फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, अगर ये कोई डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस, कोई आपको पूछने नहीं वाला है ये. तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है फंक्शन, देन ओनली उसकी फोरियर सीरीज लिख सकते हैं हम. ओके, और फोरियर सीरीज क्या होती है? कोई भी फंक्शन की f of x इज इक्वल टू a0/2 summation n goes from 1 to infinity an cos of n pi x by l plus bn sin of n pi x by l. ओके, अभी बेसिकली ये जो हमने लिखे हैं अभी a0, an एंड bn, ये जो 3 है, ये 3 टर्म्स जो है a0, an एंड bn, इनको कहा जाता है फोरियर कोएफिशिएंट. एंड बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यही 3 निकालने होते हैं, a0, दूसरा an और तीसरा bn. ओके, तो डोंट वरी, बहुत इजी है. ओके, विल सी द एग्जांपल. आपको पता चलेगा अरे ये इतना डिफिकल्ट तो है नहीं. देखते वक्त आपको डेफिनेशन दिखेगी, तो ये डेफिनेशन 10 लाइन की है. देखो, अब बोलोगे अरे सर इतना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. नहीं है कुछ. आपको खाली a0 निकालना है, आपको खाली an निकालना है और आपको खाली bn निकालना है. ये 3 चीज़ें मिल गई अगर आपको a0, an एंड bn, देन आपको फोरियर सीरीज आ गई. और आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन दिख रहा है तो हमें थोड़ा डर लग रहा है. तो डोंट वरी, इंटीग्रेशन में भी सिंपल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन लगने वाले हैं हमें. और मैं आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो बहुत इजी होगा. ओके, बाय पार्ट रूल मालूम है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, बट बाय No, पार्ट sir. रूल Yes. का भी एक बाय पार्ट रूल का भी एक सिंपल वर्जन है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, और उससे ही हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. अगर वो फॉर्मूला आपको आ गया ठीक से, तो आपको फोरियर सीरीज आ गया. ओके, सर चलो 1 बाय एल की जगह 1 ले सकते क्या? 1/l की जगह 1 बाय पाई नहीं ले सकते? ले सकते हो अगर l की वैल्यू पाई होगी तो. अगर l की सर वैल्यू यल क्या है? यल क्या है सर? मैं बोला ना l की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 1, 2, 3, -1, वो गिवन है 5. क्या सर? हाँ, वो दिया जाएगा ना आपको, इंटरवल दी जाएगी ना प्रॉब्लम में. ओके 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 यहाँ पे हमने जो लिखा है ना c, C+2L, वैसे प्रॉब्लम में आपको एक इंटरवल दी जाएगी 0 to 2 पाए. अगर 0 to 2 पाए तो l की वैल्यू पाई हो जाएगी वगैरह वगैरह. आई टेल यू वो कैसे निकालना है l, मैं बता दूंगा आपको. डोंट वरी. डन विद दिस एवरीवन? शुड आई राइट इट सर? यस सर, यस. यस, यू हैव टू. सर वो एफ ऑफ एक्स साइन एन बाय एक्स और डी एक्स ऐसा लिखा चलता है विदाउट एल? अरे वही मैं बोल रहा हूँ. ये जो l है ना, l कुछ भी हो सकता है. अगर l की वैल्यू पाई है, ध्यान दो यहाँ पे, लिसन हियर. अगर l की वैल्यू पाई है सपोज, ओके, उस केस में
एन दिखाता हूँ मैं, एन कैसे दिखेगा, विल इट लुक लाइक 1/π, और आपकी पकड़ के चलो इंटरवल आपकी 0 to 2π है, तो ऐसे देखिए 1/π 0 to 2π f of x cos of n pi x by pi, तो ये पाई पाई उस केस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos of nx ओनली, ओके। बट डिपेंड आपका अगर l की वैल्यू पाई होगी तो हमेशा आपका l पाई होगा क्या, नहीं होगा। डोंट बी इन हरी, मैं आपको बता दूंगा कि वो l की वैल्यू पाई कब होती है, कब वो कैंसिल होता है, l के जगह पाई कब लिखना है, आई विल टेल यू। Sir, इधर आपने शायद पढ़ा होगा ये, या आपने क्लास में सीखा होगा ये कहीं पे, अगर आपने प्राइवेट क्लासेस लगाए हैं तो आइदर एक क्लास में सिखाया होगा या आपने बुक में पढ़ा होगा, बट आई विल टेल यू कि वो एल कब लिखना है एज अ पाई, डोंट वरी। हाँ, एनी डाउट, एनी अदर डाउट? sir, Dirichlet's condition mean? डिरिचलेट कंडीशंस क्या होता है, 3 कंडीशन मैंने बोले ना, एक तो वो फंक्शन जो होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन होती है उसको फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटी चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन उसको फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। कोई पूछेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने लिखा नहीं है वो, बेवजह और 4 लाइन बढ़ जाएंगे हमारे। फिनिश विद दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes. Sir. हाँ बोलो। बोलो। ओके, नाउ दिस फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, दिस इज कॉल्ड एज ए यूवी रूल, और इसको बर्नौलीज रूल भी कहते हैं, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो सभी यहाँ पे, ये आपको आना ही चाहिए, देन ओनली आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी डी एक्स, ओके, दो टर्म्स है, लाइक जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं ना, प्रोडक्ट रूल, वैसे एक u है और एक v है, ओके। तो वेन एवर यू आर हैविंग अ यूवी रूल, ओके, ये जो u होता है जनरली ध्यान दो, ये जो u है ये आपका होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन या अलजेब्राइक फंक्शन। तो ये अगर आपका एक्सपोनेंशियल या अलजेब्राइक फंक्शन है और आपका ये जो v है वो कुछ भी होना चाहिए, एनीथिंग, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, then you can apply this rule. Now what do you mean by exponential? Exponential means e raised to x, is e raised to 2x, e raised to minus x, that kind, okay, that is exponential function. Algebraic means polynomial, x square plus 5 x cube, that is called as the algebraic. तो आपका जो u है वो होना चाहिए algebraic, and v can be anything, okay. Generally v जो है ये trigonometric होता है mostly, most of the time. तो ये रूल क्या कहता है, तो इस रूल में क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप होगी u एज इट इज रखना है, u कीप u एज इट इज, एंड देन यू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ v1 u v1, ओके, माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। तो ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, डैश, यहाँ पे जो डैश दिखाया जाए u डैश u डबल डैश, तो डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। तो जितने डैश होंगे उतने डेरिवेटिव्स होंगे, 1 डैश मीन्स एक डेरिवेटिव, 2 डैश मीन्स 2 डेरिवेटिव एंड सो ऑन। एंड ये जो सफिक्स लिखा है मैंने, सफिक्स मीन्स u1 v1 लिखा है, देखो ये सफिक्स, सफिक्स मीन्स इंटीग्रेशन, मीन्स v1 का मतलब क्या है, एक इंटीग्रेशन, ओके,
v2 का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, v3 का मतलब 3 बार इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। समझ में आया क्या फॉर्मूला सबको? Yes, sir. कुछ डाउट है इसमें पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। रिपीट कर रहा हूँ। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आई टेल यू वन मोर टाइम, ध्यान दो। तो आपके पास दो टर्म्स है, एक u है एक v है, ओके। जनरली ये जो u होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब e raised to x, e raised to 5x, e raised to -x, एनीथिंग e raised to something, that is called exponential. एंड algebraic का मतलब polynomial टाइप, x square plus 5, x square plus x plus 3x, एनीथिंग polynomial, ओके। एंड v जनरली होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस रूल, ओके। तो रूल क्या कहता है, पहले u को वैसे ही रखो, u एज इट इज v1 माइनस u डैश v2, अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन है। फिर पहली टर्म याद रखो बस u v1, बाद में आपको u के डेरिवेटिव बढ़ाते जाने और v के इंटीग्रेशन बढ़ाते जाने, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको, ध्यान दो, कुछ लिखो मत अभी, ध्यान दो यहाँ पे, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। ऑल ऑफ यू लिसन हियर। तो अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो ये जो एक्स स्क्वायर है, इज इट अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है, देखो। और ये क्या है आपका? Yes, sir. ये आपका है Trigonometric. ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। तो ध्यान दो, Trigonometric. जो पॉलिनोमियल होता है उसको हमेशा यू कहना है, ध्यान दो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो पॉलिनोमियल है या एक्सपोनेंशियल है उसको यू कहना है, एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगी उसको आपको बोलना है v, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द रूल उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले u ऐसे ही रखो, तो क्या लिखूं मैं पहले बताओ? X square. x X square. बेटर होगा ये सभी ब्रैकेट में लिखो तो इजी होगा आपको, क्योंकि माइनस साइन वगैरह आई तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर आया, देन साइन एक्स का लिखना है हमें इंटीग्रेशन, ध्यान दो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। Minus. आर यू गेटिंग द फर्स्ट स्टेप एवरीवन? ये मैंने u लिखा है और ये मैंने v1 लिखा है, कळालं सगळ्यांना? नो डाउट, No, sir. Yes, sir. राइट। अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ध्यान दो, नेक्स्ट टर्म होगी माइनस, ओके। ब्रैकेट में लिखो, सभी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखो। अब इसका ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये पहली वाली टर्म देखनी, ये वाली, 2x. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। आर यू गेटिंग? सिंपल है। अभी क्या देखना है, नेक्स्ट टर्म लिखते वक्त ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा ना, और माइनस साइन है उसके आगे, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अभी इस 2x का डेरिवेटिव आगे आके जाता जाना है हमें, तो ये होगा 2, 2. और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये प्लस कॉस एक्स, राइट। अभी इसके आगे इसका Yeah. डेरिवेटिव 0 बन जाएगा ना, 2 का, खत्म। तो इसके आगे कुछ नहीं होगा, 0 है, कुछ नहीं होगा। ये दिस इज द लास्ट। समझ में आया कैसे अप्लाई करना है रूल? खत्म, ये इंटीग्रेशन बन गया इसका। Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. डाउट है तो अभी पूछ लो, ये समझ में आना ही चाहिए कुछ भी करके, बिकॉज यही आपका मेन पूरे फूरियर सीरीज में यूज करने वाले हम ये फॉर्मूला। दिस इज वेरी सर इंपॉर्टेंट। सर साइन एक्स एक्स स्क्वायर दिया तो फिर उसको कैसे एडजस्ट करने का? उल्टा भी लिख दो ना, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अगर दिया होगा तो भी आपको एक्स स्क्वायर सर एक को बार x वापस से एक बार ध्यान दो। यहाँ पे मैं साइन एक्स इंटू लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ 2x लेते हैं, चलो कॉस ऑफ 2x इंटू एक्स क्यूब है या ई रेस टू एक्स। तो मुझे बताओ इसमें u कौन सा लोगे आप? u चूज करते वक्त आपको देखना है u क्या होना चाहिए, एक तो एक्सपोनेंशियल या अलजेब्राइक, तो ये होगा आपका u और ये होगा आपका v। गेटिंग? तो पहले लिखोगे, पहले आप लिखोगे u, दैट इज e रेज टू x, फिर हम लिखेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन, ओके। तो साइन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ 2x Sin 2x by 2. बाय 2 होता है, Sin 2x by 2. sin 2x by 2 माइनस
अभी ई रेस टू एक्स का वापस डेरिवेटिव अभी यहाँ पे सॉरी ये नहीं चलेगा, ये चलता ही रहेगा ना, रुकेगा नहीं कहीं कभी। इसको जनरली ऐसे नहीं देंगे आप, इसको मैं एक्स क्यूब ले लेता हूँ, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स क्यूब आएगा। क्यों नहीं लिया मालूम क्या, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, कैन यू टेल मी? 3x², उसका डेरिवेटिव होगा ना ये। यस सर। minus cos 2x by 4. minus cos 2x by 4. और ये क्या होगा उसका, sin 2x का हो माइनस जाएगा माइनस माइनस, cos 2x by 4 2x by 4. 4. फिर आगे क्या होगा, प्लस होगा 6x by 6x 6x होगा, ये क्या होगा माइनस, minus sin x Cos divided by 2x by 8. नेक्स्ट क्या होगा इसके आगे, इसके आगे और एक टर्म आएगा 6 होगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस cos 2x by x by 16 plus 0. इसके आगे वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। ओके, एक लिखो, ये आप एक करेक्शन, ये गलत होगा, लिसन ध्यान दो, ये एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते, ये कंपलसरी, ये वाला टर्म जो है आपका u, ये कंपलसरी अलजेब्राइक ही होना चाहिए। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी देखा वो इट कैन नॉट बी, ये एंड नहीं होगा कभी, तो याद रखो u इज कंपलसरी अलजेब्राइक इन द सेंस पॉलिनोमियल, देन ओनली यू कैन डू इट, एंड v जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक चलेगा या एक्सपोनेंशियल भी चलेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ में आया क्या सबको? यस सर। Sir. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? कोई डाउट्स है तो अभी पूछ लो, चाहिए तो और एक बार बताता हूँ, ओके? बट बी क्लियर विद सर एक बार फिर से ध्यान दो, पहले u क्या लेना है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज u? कंपलसरी algebraic अलजेब्राइक, खाली अलजेब्राइक याद मत रखो, अलजेब्राइक का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर प्लस 5 पॉलिनोमियल, अलजेब्राइक मींस पॉलिनोमियल याद रखो, एंड v जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक चलेगा या एक्सपोनेंशियल टर्म भी चलेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब ये ऐसे नहीं है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो u होना चाहिए, ऐसे नहीं है, तो लाइक यहाँ पे आपका u ये है x स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका u x क्यूब है, तो नॉट नेसेसरी पहली टर्म u आपकी u होगी, तो वो पहली u क्या होगा, उसके लिए कंडीशन है कि वो अलजेब्राइक होना चाहिए, वो पहला होना चाहिए दूसरा होना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं है। और फिर पहले रूल याद रखो, u v1 मीन्स u को पहले वैसे ही रखना है, v का इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अल्टरनेट साइन प्लस माइनस लगाते जाओ और u के डेरिवेटिव बढ़ाओ, v के इंटीग्रेशन बढ़ाओ, ओके? सर Problem, I think we can't start because hardly 5 minutes are there, so I will not going to start with any example, but tomorrow please go through all this, जो हमने किया है आज वो सभी देख लो ठीक से, कल हम इसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ओके? सर सर उद्या कॉलेजमध्ये इव्हेंट्स आहेत का? काय उद्या कसले event? रिपब्लिक डे. ऍक्च्युली नोटीस आली आहे, पण ऍक्च्युली कोविडमुळे सगळ्यांना अलाउड नाही आहे रे. सर एक बार फिर से बता दीजिए नहीं यार. हेलो हा बोलो, एकदा वाचा तुम्हीच आता हे व्यवस्थित लिहून काढा 2 वेळा, ओके? सोपं आहे. सर्कल कॉलेज है हेलो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ध्यान दो सभी. सर